Hello everyone. Welcome to this session at Tathastu IS. And in this session, we'd like to talk to you about common mistakes in mains answer writing and how to fix them. So अभी prelims 2025 खत्म हुआ है and everybody is the students who are qualified and students who unfortunately have not been able to make it this year. For both of them, I think this session is very important because मेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन. आप लोग को पता है यूपीएससी का स्टेप्स ऐसा होता है, यहाँ पे प्री, फिर मेंस और फिर आता है इंटरव्यू, राइट? सो दिस इज what this session is about and this is a very important part of your entire UPSC preparation because जो total marks होता है उसमें mains का marks plays a very substantial role. And in this session I would like to talk to you about कि क्या क्या ऐसे common mistakes हैं जो candidates करते हैं मेंस प्रेप के टाइम पे, मेंस आंसर राइटिंग के टाइम पे, and how you can ensure कि आप वो ना करें, how you can fix that. And this session entire जो भी मैं बताऊंगा, this has been somehow the sum product of all my learnings over the past few years. मैं I'll just give a brief background about myself. My name is Saharsh Kumar and I secured All India rank 153 in UPSC CSE 2024 and this was my fourth attempt and this was my second mains. तो मैंने जो मेंस के लिए प्रेप किया है, लगभग 4 साल से प्रेप कर रहा हूँ, तो उसमें जो जो मैंने सीखा है, this entire session is a sum product of all of that. So before we get into mains answer writing, I think this is what everybody is interested in, mains answer writing. But before we get into that, I want to take some time out and talk to you about mains in general. क्योंकि mains answer writing is a product, is a function of आप ये जो 3 महीने होते हैं, लगभग 2-2.5 महीने, 2.5 से 3 महीने होते हैं आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, and before that also, मतलब तो basically it's a function of how you have been preparing for mains in your entire UPSC preparation journey. So उसका सम प्रोडक्ट है, इसलिए मेंस आंसर राइटिंग में बाद में आएंगे, अभी मेंस प्रेपरेशन पे बात करते हैं, ठीक है? So we'll talk about mains preparation. So mains preparation में I would want to talk to you about the mistakes students do. So let's just do one thing. Let's just move to a fresh page, right? ठीक है. So we are talking about mains prep. So mains prep में मैं बताऊंगा common mistakes. So to make it easier for you to understand and kind of recall it, I have made a mnemonic device. आप लोग को पता है mnemonic क्या होता है, आप prep कर रहे हैं, so I'll just share this with you. Firstly, we'll talk about M. So M is very important part of when you're preparing for mains. M stands for mocks and analysis. So आप जब मेंस दे रहे हैं, जैसे आपको पता है आपने प्रीलिम्स के मॉक्स दिए अगर होंगे, तो वैसे ही मेंस के अब मॉक्स आएंगे, मेंस के मॉक टेस्ट सीरीज ये सब स्टार्ट होंगे. सो मेंस प्रेप के लिए मॉक टेस्ट सीरीज देना, उनका एनालिसिस करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो मॉक्स दो ये टाइम्ड होने चाहिए एंड एनवायरनमेंट में होना चाहिए, मॉक एनवायरनमेंट में. तो मॉक एनवायरनमेंट में अनलेस आप नहीं दोगे तब तक आपको थोड़ा यू विल स्टिल नॉट गेट द हैंग ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू राइट दोज 3+3 6 आवर्स के आंसर्स ऑन द डे ऑफ द मेंस एग्जाम. एंड दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट दैट टाइम्ड आंसर्स तो लिखिए डेफिनेटली, उसके साथ साथ मेंस के मॉक एनवायरनमेंट में लिखिए, हैव इट, make sure it is invigilated, somebody is there to pull away your answer sheets after the 3 hours is done, all that should be there. आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और भी लोग हों जो आपके साथ साथ मेंस का टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मॉक सीरीज दे रहे हो, सेम रूम में इन दैट टाइम मैनर, सो दैट हेल्प्स अ लॉट. सो दैट इज मॉक्स एंड एनालिसिस. ये तो बात हुई मॉक्स की, सॉरी आई फॉरगॉट, एनालिसिस की बात भी करनी है. सो आफ्टर यू सपोज स्पेंड अबाउट 3 hours गिविंग योर मॉक्स, बट देन यू शुड स्पेंड at least 2 hours पर पेपर टू एनालाइज योर मॉक. जब मॉक्स आप देते हैं उसके बाद या तो वो इवेल्युएट होके आता है या आपको कोई मॉडल आंसर्स मिलते हैं, तो उसको लेके बैठिए और अपने आंसर को कंपेयर करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट डिड यू मिस आउट ऑन. देयर इज नो राइट और रॉन्ग वेज इन गिविंग आंसर्स. तो क्या आप और सीख ले सकते हैं मॉडल आंसर से, क्या स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या डेटा पॉइंट्स आप ले सकते हैं, ये सब को लेके आपको एनालिसिस करने की जरूरत है. सो दैट अगर सेम क्वेश्चन, लाइक मोस्ट फॉर्चुनेट कंडीशन, सेम क्वेश्चन आ जाए मेंस में,
So your answer in your mains will be very different from the answer you have written in your mocks. That will only be possible when you have done proper analysis. At least 2 hours you have to spend per paper to, you know, analyze them and get learning from them, and then assimilate them in your further answers. That is M. Second, here one more very very important point I would try to say is importance of optional. So ऑप्शनल पेपर जो होता है दैट इज 500 मार्क्स, मतलब 250 250 500 मार्क्स का ऑप्शनल 2 पेपर होते हैं, आप लोगों को पता है. एंड ऑप्शनल इज वन ऑफ द रियली स्कोरिंग सब्जेक्ट. इट इज अ मेक और ब्रेक सब्जेक्ट. मतलब काफी बार देखा गया है जो टॉपर्स होते हैं इनके, ये इनका रैंक लिस्ट में कैसे आता है, ऑप्शनल मार्क्स खींचता है. सो ऑप्शनल को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं. ऑप्शनल बिकम्स very very important. So firstly I feel that we are we have gone through the entire process of choosing our optional. वो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आप इस रूम में आप ये वीडियो देख रहे हैं. तो ऑप्शनल आपने ये डिसाइड कर लिया अपना ऑप्शनल. उसके बाद गिव इट ड्यू इंपॉर्टेंस. ऑप्शनल का प्रेपरेशन आई वुड सजेस्ट, अगर आप 2026 वाला मेंस के लिए अगर दे रहे हैं, प्रीलिम्स के अटेम्प्ट दे रहे हैं 2026 जो साइकिल है उसके लिए, सो इन दैट केस अभी आपके लिए बेस्ट टाइम है. यू टेक दिस टाइम आउट एंड स्टार्ट डेवलपिंग द कमांड ऑफ योर ऑप्शनल. दिसंबर तक एक राउंड आपका ऑप्शनल हो जाना चाहिए. फेब तक आपका फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन हो जाना चाहिए, सो दैट you can start with the second, third rounds of revision and proper answer writing in the 2.5 to 3 months जो आपके prelims और mains के बीच में आता है. So that is why optional is very important. I personally what I did in both of my mains attempt, जो ये 3 महीने होते हैं, इन 3 महीनों में मैं on a daily basis, come what may on a daily basis, 6 से 8 घंटे 6 to 8 hours per day ऑप्शनल को देना था. सो इतना इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शनल. और ऑप्शनल, लाइक आई सेड, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस एनी मोर दैट ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंटायर मार्क्स. ऑप्शनल से ही आपका मार्क्स इंप्रूव होगा, मार्क्स पुल होगा. सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू ऑप्शनल. आंसर राइटिंग अगेन, मॉक्स दीजिए ऑप्शनल के, मॉक्स का एनालिसिस करिए, ट्राई टू गेट एन आइडिया. बिकॉज मॉक्स जो आप ऑप्शनल में आंसर लिखते हैं, जैसे आई कैन से दिस फॉर ऑप्शंस लाइक एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह, इसमें जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जीएस का फॉर्मेट. इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप वो फॉर्मेट को भी अंडरस्टैंड करें, उसको अडेप्ट करें, उसको सीखें, एसिमुलेट करें. इसलिए यू हैव टू राइट मॉक्स, एनालाइज करना है, इम्बाइब करना है उनके फीडबैक को. और सिमिलरली 6 to 8 आवर्स पर डे इज बेयर मिनिमम. आपको ये 2.5 से 3 महीने में इतना तो देना पड़ेगा. इसके पहले जो आप अगर 2026 अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अभी जो पीरियड है उसमें आप एटलीस्ट 3-4 घंटे ऑप्शनल का डेली दें, बिकॉज आपको अपना फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग करना है. सो एक सर्टेन लेवल तक पहुंचना है, एक सर्टेन एक्सपर्टीज आपको चाहिए ऑप्शनल पे. थर्ड पॉइंट इज समरीज एंड नोट्स मेकिंग. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बातें लिंक्ड है. ये एस हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बातें लिंक्ड है. तो समरीज एंड नोट्स मेकिंग, तो आप जब ये मेंस का टाइम होता है, ये 2.5 से 3 महीने या इसके पहले भी आप काफी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, काफी कुछ पढ़ते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक समराइज्ड वे में अपने नोट्स में बनाएं और उस नोट्स को जाके रिवाइज करिए. क्योंकि यू नीड टू हैव ऑल दोज डेटा पॉइंट्स, यू नीड टू हैव दोज numbers in your answers, you need to have those statements or ideas or keywords in your answers that enriches your answers. And इसलिए it's important कि आप अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स हो गया हो या कोई भी स्टैटिक का पोर्शन या something that you read in a model answer, you want to note it down so that you can use it in your answers going ahead. इसलिए it's very important कि आप उनके समरीज बनाएं, नोट्स बनाएं और इस नोट्स को अगेन एंड अगेन रिवाइज करें. इतना रिवाइज करें कि जब आप आंसर लिख रहे हैं अपना ऑन दी डे, इतने एंग्शियस एनवायरनमेंट में, इतने स्ट्रेस एनवायरनमेंट में, वो वाले पॉइंट्स आपको आपके सबकॉन्शियस में बैठ गए और आपको ऑटोमेटिकली वो आपको रिकॉल हो जाएंगे एंड यू कैन इंक्लूड दोज इन आंसर्स. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आता है दैट ये जो 3 महीने हैं इसमें इज इट इंपॉर्टेंट और should we go back and cover the static portions again? Because
हमने प्री के लिए स्टैटिक पोर्शंस किया है, अब क्या मेंस के लिए भी ये 3 महीने में एक बार स्टैटिक को घुमा लेना चाहिए जिससे चीजें रिकॉल रहेंगी. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम. ये जो 3-2.5-3 महीने में उसमें बहुत कुछ करना है आपको. सो इफ यू कैन देन प्रीलिम्स में जो आपने स्टैटिक कवर किया था ट्राई करिए कि उससे ही काम निकल जाए, आपको वापस स्टैटिक में वापस सेम बुक्स उठाना ना पड़े. एक्सक्यूज मी, वापस आपको ये बुक्स उठाना ना पड़े. बट जस्ट इन केस यू आर नॉट श्योर, आई वुड सजेस्ट कि इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो आपको वापस स्टैटिक आपको मन कर रहा है और आपका मन नहीं मान रहा है, यू फील दैट यू नॉट कॉन्फिडेंट एंड यू वांट टू go back and study those static portions again, I would say do not spend more than 1 week in covering your entire static syllabus in those 3 months, because ये static जो आपने पढ़ा था वो तो है ही, उसके साथ साथ you have to study more new subjects for statics such as disaster management, such as internal security, such as वर्ल्ड हिस्ट्री. तो ये सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं विच इज ओवर एंड अबव द स्टैटिक यू हैव रेड बिफोर, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेंड वेरी लिमिटेड टाइम, 0 इफ पॉसिबल, वर्स्ट केस सिनेरियो मैक्सिमम 1 वीक ये स्टैटिक को रिवाइज करने के लिए, एंड देन मूव ऑन टू दीज न्यू सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे हैं सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 3 महीने आप करंट अफेयर्स पढ़ें. करंट अफेयर्स में जो नई चीजें आ रही हैं उनको आप अपने नोट्स में लिखें और उनको आप अपने आंसर्स में यूज करें एज एग्जाम्पल्स. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेन very abreast about what is happening in current affairs as well. जैसे अभी recently Operation Sindoor has been in the news, so these kind of things you need to bring them into our answers. Operation Sindoor के time there was also a lot of discussion about women in armed forces, how women are doing us proud, so that can be made part of your answers. There are recent discussions about the Inter-Services Organization Bill Act जो उसके rules निकले हैं, तो that has been in the news. So because of this current affairs becomes very important because इससे direct question आ सकता है. इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेके व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, उसको लेके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दिस ओनली वेयर यू आर अपडेटिंग योरसेल्फ विद ऑल द करंट अफेयर्स. सो आई वुड सजेस्ट कि करंट अफेयर्स तो आप कंटिन्यू रखिए अपना डेली लेवल पे पढ़ना. उसके साथ साथ व्हाट यू कैन डू इज से इस साल अगर आपका अगस्त में मेंस है, सो 22 अगस्त है, सो यू कैन tone down the amount of time you are spending in current affairs starting from the 1st of June. but उसके पहले तो diligently every day level पे आप current affairs पढ़िए और उनके pointers को अपने notes में, अपने answers में include कीजिए. next is kick off for mains. मतलब क्वेश्चन आता है, काफी स्टूडेंट्स में से पूछते हैं दैट व्हेन शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. काफी स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि पहले प्री पे फोकस करते हैं और प्री एक बार निकल जाए उसके बाद 2.5-3 महीने में मेंस निकाल लेंगे. 100% अभी टाइम जो भी है, अभी अगर आप 2026 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो यू गॉट अबाउट अ ईयर अंटिल योर नेक्स्ट प्रीलिम्स. सो तब तक a lot of students feel that 100% टाइम प्रीलिम्स में ही देते हैं, मेंस का बाद में देखा जाएगा क्योंकि प्रीलिम्स निकालना ही इंपॉर्टेंट है मेन उनके लिए. बट आई वुड सजेस्ट दैट उन स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाए इस नेक्स्ट ईयर, फॉर्चुनेटली अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाए, उसके बाद यू विल गेट वेरी कंफ्यूज्ड कि भाई प्रीलिम्स तो निकल गया बट यू डोंट हैव टाइम प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एंड यू डोंट हैव एनी क्लू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस, यू डोंट हैव एनी क्लू व्हाट इज द सिलेबस ऑफ मेंस, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स. दैट इज व्हाई ये जो किक ऑफ पीरियड है मेंस का, इन माय ओपिनियन अगर आप 2026 के लिए प्रेप कर रहे हैं, सो दिस राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू किक ऑफ योर प्रेपरेशन फॉर मेंस, स्टार्ट योर प्रेपरेशन फॉर मेंस. एंड देन इट्स इंपॉर्टेंट कि यू टेक दिस टाइम आउट एंड गेट टू नो क्या आपका ऑप्शनल है. ऑप्शनल का प्रिपरेशन जैसे मैंने बोला वो करना स्टार्ट कर दीजिए. आंसर राइटिंग थोड़े बेसिस पे आप स्टार्ट कर दीजिए. थोड़ा ये वाला जो नए नए सब्जेक्ट्स हैं इनको स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना. इनके अलावा भी और सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना. तो इससे क्या होगा कि जब आपका प्री कवर हो जाएगा
कंप्लीट हो, मतलब प्री निकल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, सो यू विल नॉट फील वेरी ओवरवेल्म जब आपका मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट होगा, बिकॉज यू विल हैव अ बैकग्राउंड. एंड मैं बोलूंगा इसके साथ साथ कि मेंस का अगर आप किक ऑफ करते हैं अभी, तो अगली साल जनवरी या फरवरी से यू कैन स्टॉप योर मेंस प्रिपरेशन एंड फोकस एंटायरली 100% ऑन प्रीलिम्स, सो दैट आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए मेंस में, एंड आप मेंस वापस रीस्टार्ट कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं आफ्टर योर प्रीलिम्स. नेक्स्ट, point number 7. Now, this in my opinion is also a very important factor. Means में काफी students को बहुत problem होता है इसमें करने में, ये करने में. So this is emerging from pre to mains. So I always say that हमने बात किया था इस slide में that there are 3 stages: pre, mains and interview. तो ये 3 stages जो होते हैं एग्जाम के, इन तीनों स्टेज के लिए there are very different demands from the student. जो स्टूडेंट के लिए आस्क होता है, जो यूपीएससी पूछता है, दैट इज वेरी डिफरेंट. एंड इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू क्लियर वन स्टेज, जब आप प्री से मेंस की तरफ जाते हैं या मेंस से इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्विकली ट्रांजिशन योरसेल्फ फ्रॉम अ प्री स्टूडेंट टू अ मेन स्टूडेंट और फ्रॉम अ मेन स्टूडेंट टू एन इंटरव्यू स्टूडेंट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसीलिए दैट्स व्हाई आई सेड दैट इमर्जिंग फ्रॉम प्री टू मेंस, जब आप प्री देके निकलते हो, देन यू आर अ स्टूडेंट विद अ माइंडसेट ऑफ एमसीक्यूज, क्विकली ऑप्शन एनालिसिस करके, कैलकुलेटेड गेसेस करके ये आंसर्स निकालना. सो दैट इज योर माइंडसेट. बट देन कितनी जल्दी आप उस माइंडसेट से मेंस के माइंडसेट में आ सकते हैं? somebody who is able to write quickly, somebody who is able to come up with points that are relevant, that address the demand of the questions. फट फट करके points आप निकाल सकते हो, 4 point 5 points. So that is what the game of means is about, and that is what you need to change yourself into. यहां से यहां आना ये भी एक जर्नी होता है. इसमें काफी लोगों को टाइम लग जाता है, उन्हें लगने लगता है दैट मेंस के लिए वो रेडी नहीं है. तो इसीलिए जितनी जल्दी आप आ पाए उतना अच्छा रहेगा, और ये तभी हो पाएगा जब आपका किक ऑफ जल्दी हुआ है, राइट. एंड द लास्ट मिस्टेक इज, last but not the least, is syllabus. Day 1 of your or week 1 of your mains preparation, you should go through जो यूपीएससी का मेन सिलेबस है, जो यूपीएससी निकालता है, you should go through that and then try to understand, try to figure out कि क्या क्या exactly syllabus में है. For example, something that a lot of students don't know when they're not familiar with mains, they don't know that medieval history has very limited scope in mains. थोड़ा आर्ट एंड कल्चर से इंटरफेस है, नहीं तो बहुत कम है. तो इसलिए medieval history is largely to do with prelims and very limited way to do with mains. And that is why it is very important that you remain hands on with the syllabus. यूपीएससी निकालते हैं, यूपीएससी एक पूरा पीडीएफ निकालते हैं हर साल, जिसमें हर जीएस 1 2 3 4 सब ऑप्शनल सबका सिलेबस लिखते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका एक प्रिंट आउट निकालें और उसको जस्ट गो थ्रू इट एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस सिलेबस इज, आपका क्या क्या डिमांड है, एंड इससे आपका प्रिपरेशन और ज्यादा फोकस और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. सो दिस हैज बीन द मिस्टेक्स अबाउट मेंस प्रिपरेशन, राइट. सो लाइक आई सेड, mnemonic device MISTAKES. तो ये मिस्टेक्स अगर आप याद रखेंगे, then you will know that these are the mistakes that you are not supposed to do, and these are the mistakes that if you avoid, then you can ensure that your main journey is smoother, and you can ensure that you find yourself a seat at the table, or in this case a seat or a name in the PDF. So this was about the mains preparation. जब आप overall overview में देख रहे हैं मेंस का preparation, अब question आता है कि answer writing. We are going back to the original discussion, common mistakes in mains answer writing and how to fix them. So we'll talk about mains answer writing here now. ठीक है. तो mains answer writing में क्या मिस्टेक होता है, यहां पे हेडिंग डाल देता हूं. ओके, तो मेंस आंसर राइटिंग जब आप स्टार्ट करते हैं,
तो उसमें काफी कुछ देयर इज अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स. सो मतलब लोग बोलते हैं दैट it's very subjective. Agreed, mains is very subjective, but then there are certain do's and don'ts. There is a formula here. कुछ फॉर्मूला ओवर द इयर्स जो हमारे टीचर्स है, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स है, टॉपर्स है, उनने लिख के मार्क्स लाए हैं. तो ओवर द इयर्स थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है. व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, व्हाट आर द characteristics of a good answer, what are the certain things that you have to avoid, and this is what this entire discussion will be about. कि ऐसा क्या करना चाहिए मेंस में, what are those do's and don'ts जो मैंने भी कुछ चीजें अपने प्रेपरेशन से सीखी हैं ओवर द इयर्स और अपने अंदर अडेप्ट की है. सो फर्स्टली मेंस में जो आपका आंसर लिखते हैं उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. वन, कंटेंट. ऑब्वियसली आप क्या लिख रहे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या लिख रहे हैं आप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट फॉर्म्स द एंटायर पार्ट ऑफ योर आंसर जिसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेगा. बट दैट इज नॉट ऑल, एंड दैट इज नाउ दिस इज समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल फेल टू अंडरस्टैंड. इट इज नॉट जस्ट कंटेंट बट कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन. सो यह प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप अपने आंसर्स कैसे लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, नॉट क्या लिख रहे हैं बट कैसे लिख रहे हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, try to imagine for a minute the mindset of the individual who is checking your answer, who is evaluating your answers, mains answers. Now this individual has been evaluating answers day in day out, and उनका जॉब है ये आंसर्स इवेल्युएट करना 3 महीने तक, डे इन डे आउट. जब आप मेंस सपोज आपने अगस्त में लिखा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने करता है और फिर दिसंबर में रिजल्ट निकलता है. तो 3 महीने डे इन डे आउट वो यही आंसर्स चेक कर रहे हैं, एंड वो एक ही तरह के आंसर्स चेक कर रहे हैं क्योंकि आंसर्स में अब क्वेश्चंस तो सेम है, तो यही क्वेश्चंस वो बार बार देख रहे हैं एंड वही इवेल्युएट कर रहे हैं. दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम. दे हैव व्हाट 13-14,000 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर्स है जो उनको चेक करने हैं. सो दे स्पेंड वेरी लेस टाइम पर क्वेश्चन. दे स्पेंड अबाउट समथिंग फ्रॉम say 1.5 to 2 minutes per question, which is a guess again, but this is a calculated, it's a logical guess कि इतना ही spend कर पाएंगे. इसके साथ साथ वो frustrated हैं इस माहौल में. So in this environment they're checking, and that is why I feel that presentation becomes very important, because in this environment if somebody is evaluating a paper, the easier you make it for him or her, the better it is for him or her, and the more satisfied or happy they will be with your answers. And that is why presentation becomes very important to fetch you good marks. क्योंकि अगर आपका presentation अच्छा है, वो 1.5-2 मिनट में आपका आंसर देखेंगे और उनको समझ आ जाएगा कि okay, this student knows the concept, this student has been able to show me that he or she knows the concept. And चलो let's give them a good marks, let's give them decent marks, let's give them average marks. But in case आपका content दुनिया भर का आपका content है, भरा पड़ा है, but presentation आपका अच्छा नहीं है, so they will, even if you have got good content, they do not have the time to go through that good content in the 1.5 to 2 minutes, and that is why they may not give you the marks that you deserve. इसलिए अच्छा content चाहिए, उसके साथ साथ you need a healthy, a very good mix of good presentation, and that is why I'll talk to you a lot about presentation. तो just to give a brief idea about presentation कैसा होना चाहिए, आपका 10 मार्कर्स ऐसा होता है 2 पेज में, और 15 मार्कर्स में 3 पेज मिलता है. सो a good presentation would be, आप लोगों को पता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना, यहाँ पे बॉडी लिखना उसके नीचे, और यहाँ पे या तो 10 मार्कर्स में सेकेंड पेज के एंड में कंक्लूजन लिखना, या 15 मार्कर्स में यहाँ पे कंक्लूजन लिखना. सो उसके बीच में बॉडी आएगा. नाउ इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया 3-4 लाइंस, कंक्लूजन आपने लिख दिया 3-4 लाइंस, दैट्स इट. उसके बाद प्रेजेंटेशन आएगा, बीच का बॉडी. नाउ बीच के बॉडी में हाउ डू यू प्रेजेंट इन अ बेटर मैनर. सो समथिंग लाइक दिस कि आपको क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लड्स. तो यहां पे आप लिखोगे, यहां पे आप ऐसे करके एक बॉक्स कर दोगे और इस बॉक्स के अंदर लिखोगे causes of urban floods, एंड उसके बाद यहां पे लिखोगे पॉइंट वन लिखेंगे, यहां पे इसका हेडिंग देंगे, सब हेडिंग, और फिर यहां पे पॉइंट 1 लिख देंगे, उसको डिस्क्राइब कर देंगे एग्जांपल के साथ
सिमिलरली पॉइंट 2 सब हेडिंग अंडरलाइन किया, हाइफन डाला और फिर एग्जाम्पल के साथ डाल देंगे. नाउ द आइडिया हियर इज, अगर आप ऐसा करेंगे सो उनको दे डू नॉट हैव टू गो थ्रू द एंटायर सेंटेंस, दे कैन ओनली गो थ्रू व्हाट यू हैव अंडरलाइन. दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि उनको 1.5-2 मिनट में पूरा चीज पड़ोस के दो, चीजें अंडरलाइन करके दो. यहां पे कॉजेस जो हेडिंग है इसको ऐसे बॉर्डर एक बॉक्स करके दो. सिमिलरली इसके आगे आपको लिखना है इम्पैक्ट, तो उसको भी यहाँ पे बॉक्स कर दो, इम्पैक्ट इम्पैक्ट करके यहाँ पे आप इम्पैक्ट ऑफ अर्बन फ्लड लिख देंगे. सिमिलरली फिर यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे अगर आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना है, कुछ बीच में डायग्राम्स आना है, तो ये सब आप डालिए जिससे आपका आंसर और ज्यादा एनरिच हो जाएगा. दिस एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट which is diagrams plus flow charts. तो आपका आंसर तो आंसर हम देखते हैं ऐसे वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट 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 लिखा रहता है, बट इन्हीं टेक्स्ट के बीच में मल्टीपल आंसर्स फुल ऑफ टेक्स्ट, उसके बीच में अगर कोई आंसर आ जाए जहां पे किसी ने कोई डायग्राम ड्रॉ किया, एंड ऑल्सो इट हैज टू बी रेलेवेंट डायग्राम. जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन आए, बीच में आ गया क्वेश्चन अबाउट ITCZ, तो ITCZ जो आपका क्वेश्चन आ गया, इन दैट केस अगर आपने वर्ल्ड मैप में ड्रॉ कर दिया कि जनवरी में ITCZ कहां होता है, जुलाई में ITCZ कहां होता है, तो अगर आपने वैसा ड्रॉ कर दिया, सो दैट एनरिचेस योर आंसर फर्दर एंड दैट गिव्स यू मोर मार्क्स बिकॉज दैट इज अ डायग्राम बट ऑल्सो अ रेलेवेंट डायग्राम. तो इसलिए डायग्राम्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, इससे आंसर आपका और ज्यादा एनरिच होता है, ज्यादा सुंदर लगता है अगेन कि 1.5-2 मिनट में जब कोई इवेल्युएट कर रहा है तो उनको लगता है कि दिस स्टूडेंट नोज व्हाट he or she is writing about. उसके साथ साथ flow charts are also one way of enriching your answer. तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको आंसर में कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डालना है which is not exactly the demand of the question. जैसे क्वेश्चन यहीं पे अगर आ गया, what are the causes of urban floods and what are the impacts of urban floods, ऐसे क्वेश्चन आ गया. So in that case आपने अगर causes impact लिख दिया, 10 मार्कर्स आ गया, बट उसके बाद आई फील कि आपको अगर मन करे कि आपको लगे कि इंपैक्ट तो लिख दिया, बट आई थिंक एक वे फॉरवर्ड भी अगर मैं लिख पाता तो आंसर ज्यादा होलिस्टिक होता. इन दैट केस यहां पे आप क्या करेंगे, ऐसे करके एक बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे, इसको बॉक्स करेंगे और इससे 4 एरो निकाल देंगे, ऐसे करके 4 एरो निकाल के 4 पॉइंट लिख देंगे. तो ये हो गया आपका एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन. और इससे फायदा क्या है, एक तो दिस विल ब्रेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ राइटिंग इन टेक्स्ट, एट द सेम टाइम इट विल हाईलाइट कि सर मैम मैंने, आप ये देखिए, आप 1.5-2 मिनट दे रहे हैं, ओके कोई बात नहीं, बट आप ये देखिए कि मैं ये अलग से प्रेजेंटेशन करके ये दिखा रहा हूं कि आपने जो 2 क्वेश्चन पूछा है कॉजेस एंड इंपैक्ट, इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला है जिसके लिए आई फील आई शुड गेट मोर मार्क्स, एंड ये तब हाईलाइट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मे फेच यू मोर मार्क्स, एंड दैट इज व्हाई डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दैट इज दिस बिट. थर्डली, कीवर्ड्स. अब बात आ जाएगी कंटेंट पे. तो कंटेंट आप लोग को मालूम है, आप लोग कंटेंट के लिए ही पढ़ते हो, कंटेंट आपका ओवर द इयर्स एनरिच हो रहा है. आप जैसे डिफरेंट मेंस आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफरेंट आप न्यूज़पेपर्स या डिफरेंट स्टैटिक पोर्शंस पढ़ रहे हैं, कंटेंट आपका एनरिच हो रहा है. बट उसके साथ साथ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू शो दैट कंटेंट तो सब पढ़ते हैं, बट आपका एज क्या है. आपका एज ये है कि आप कुछ कुछ अच्छे कीवर्ड्स यूज करते हैं. नाउ आई टेल यू, राइट नाउ कीवर्ड्स आर ट्रेंडिंग. आप समझ सकते हो कीवर्ड्स आर ट्रेंडिंग बिकॉज अ वेरी सिंपल एग्जांपल वुड बी, जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, दे ऑफन हैव वेरी नाइस एक्रोनिम्स. ठीक है, निमोनिक डिवाइसेस जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, प्राइम मिनिस्टर ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले स्पीच दिया था, and he talked about the qualities that different civil services should have, and he very nicely he said these qualities are an acronym of AEIOU. These are the qualities that civil servants, the modern civil servant should have. Now AEIOU acronym हमें सबको पता है, ये vowels है और उसी से उन्होंने बनाया. So that is why this is something like a keyword. This is something that एक buzzword है जो अगर आप यूज कर रहे हैं तो it seems that आप पढ़ तो रहे हैं, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे आई डोंट नो, लाइक कीवर्ड्स कुड बी समथिंग लाइक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन,
तो ये कीवर्ड हुआ। तो ऐसे टाइप के आप कीवर्ड्स अगर अपने आंसर में यूज करेंगे, डेमोग्राफिक, डिविडेंड, ठीक है, डेटा इज द न्यू ऑयल, ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स अगर आप यूज करेंगे अपने आंसर्स में तो आपका आंसर्स में एक और डिमेंशन आ जाता है और ज्यादा एनरिच हो जाता है। एंड ऑल्सो इसको यूज करके आप अंडरलाइन करेंगे तो अगेन द पर्सन हु इज इवैल्यूएटिंग फील्स दैट ओके दे आर not just writing content, not just giving good points, but also giving good keywords, good statements, good words that are in the news. And this, why is this important? I'll tell you. Because as an officer, you are often responsible for drafting different speeches. It may be that for some leader you are drafting speeches, for a senior could be say you are a secretary and you are drafting it for a political leader, it could be. So अगर आप draft करें speeches, so it is important that आप जो चीजें, जो वर्ड्स हैं, जो मीडिया में जो डिफरेंट बाकी लीडर्स में के स्पीचेस में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जैसे एक दो साल पहले जब हमारे पास G20 हुआ था तब हमारे पास ये जो टर्म था वसुदेव कुटुंबकम, तो हम हर जगह दिखते थे। एंड दैट इज व्हाट, व्हाई डिड दैट हैपन? बिकॉज द स्पीचेस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स और स्पीचेस ऑफ different people, different senior men in the bureaucracy, senior leaders in the bureaucracy, they had these keywords, and this shows that your ability to, अगर आप ये अपने आंसर्स में लिखते हैं, it shows your ability to take these words जिनको लेके समाज में डिस्कशन हो रहा है, take them and bring them into your answer writing. Glass ceilings, ठीक है, glass cliffs, तो ये सारे कीवर्ड्स आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो आंसर्स और ज्यादा एनरिच हो जाएगा, एंड इट शोज दैट यू आर अ स्मार्ट इंडिविजुअल. So that is why keywords become very important. Next point is something which is often overlooked is introduction and conclusion. तो जब आप अपने आंसर लिख रहे हैं काफी बार ऐसा होता है दैट आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं, या कंक्लूजन नहीं लिखते, आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव टू फिनिश, यू हैव टू हरी टू फिनिश. सो आई कैन नॉट stress it anymore that introduction and conclusion are very, very, very important. We are not sure how it works, but we feel that introduction and conclusion लिखने के extra marks होते हैं. ये जो 10 marks और 15 marks ये जो आपके questions होते हैं, इसके marks का breakup होता है जिसमें there are 1 or 2 marks assigned to each of introduction and conclusion. That is why they become very important. These are a sure short way for you to fetch 1 or 2 marks more per answer. इसलिए हर आंसर में इंट्रोडक्शन लिखें और कंक्लूजन लिखें. अब क्या लिखें? इंट्रोडक्शन इज वेरी सिंपल. काफी स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को लेकर, बट इन माय ओपिनियन वेरी सिंपल. आप कुछ नहीं तो इंट्रोडक्शन के लिए क्वेश्चन में कुछ अगर कीवर्ड पूछा है दैट SDGs के बारे में सपोज कोई क्वेश्चन आए, सो वी कैन से दैट SDGs होते क्या है, उनको डिफाइन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में. या कोई क्वेश्चन आए से अबाउट द गवर्नर, सो देन वी कैन मेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स which give powers to the governor. ऐसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं the entire concept. Similarly, conclusion should be something that is forward looking, that is futuristic, that is optimistic. And ऐसे हम अगर बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए से अगेन टॉकिंग अबाउट द गवर्नर, क्वेश्चन आए ऐसा कुछ दैट द गवर्नर इज द रबर स्टैम्प और गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ द सेंटर. सो कंक्लूजन वुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट ओके while there might be criticism, but then by following the recommendations given by the Sarkaria Commission, we must ensure that the governor, the office of the governor remains true to the spirit of the constitution, or true to the vision of the forefathers of the nation, or true to the vision of the constitution makers. तो ऐसा कुछ optimistic futuristic solution हम दे सकते हैं अपने conclusion में. So that is a nice simple way of putting forward a conclusion. Conclusion में आप ऐसा कुछ दे सकते हैं, अगर इकोनॉमी को लेके क्वेश्चन आए आप कंक्लूड कर सकते हैं दैट ऐसे हम अप्रोचेस फॉलो करें, देन वी कैन एंश्योर दैट इंडिया बिकम्स विकसित भारत और श्रेष्ठ भारत और वसुदेव कुटुंबकम हो सकता है. वी कैन बिकम अ विश्व गुरु बाय 2030, 2047. ये सब हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं हमारे कंक्लूजन में. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. सो क्या होता है, काफी बार
हम आंसर्स लिखते हैं, क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, एंड वी स्पेंडिंग इनफ टाइम. हम 10 मार्कर्स के लिए 7 मिनट्स के आसपास स्पेंड करते हैं, 15 मार्कर्स के लिए वी स्पेंड अराउंड 11 मिनट्स, एंड वी आर गिविंग द टाइम. हम आंसर्स जब लिख रहे हैं मॉक्स में या फाइनल मेंस में लिख रहे हैं, तो वी आर गिविंग द टाइम. बट if we are not addressing the demand of the question, then we are just wasting that time. ये जो हम टाइम इसमें वेस्ट किए, that will not fetch you any marks at all. 0 मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा कि काश वो टाइम, अगर आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिल रहे होते हैं इस आंसर के लिए या ये पॉइंट्स के लिए, तो you could have spent that time elsewhere in a different question that might have fetched you more marks. So it is very important for you to address the demand of the question. How do you do that? For that, you have to understand what is the demand of the question. You have to spend some time, a few seconds, trying to read that question, which you can do. In my opinion, the best time to do that is the few minutes that you get after the paper distribution and before the start of the paper. जब ये कुछ 2-4 मिनट मिलते हैं, तब आपके पास कुछ आप लिख नहीं सकते हो, तो आप कुछ नहीं, बस क्वेश्चंस पढ़िए, और क्वेश्चंस पढ़ के ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका डिमांड थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, और फिर उन क्वेश्चंस को सोचिए कि उनका डिमांड एग्जैक्टली है क्या, क्या क्या पार्ट्स में आप खोलेंगे उन क्वेश्चंस को. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन आएगा दैट इवैल्यूएट the 1857 revolt, evaluate the role of 1857 revolt in India's freedom struggle. ठीक है, so in that case a tendency of most students is evaluate the role. अगर पूछा 1857 revolt का, तो उसमें उन लोग लिखेंगे कि उन लोग इसको रीइंटरप्रेट कर देंगे कि कैसे how did the 1857 revolt lead to freedom struggle further. तो उन लोग सिर्फ पॉजिटिव्स की बात करेंगे, बट इवैल्यूएट की बात कर रहा है, तो हमें पॉजिटिव्स भी बोलना होगा किस तरह 1857 रिवोल्ट लेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल, बट उसके साथ साथ ये भी लिखना होगा कि व्हाट वर द लिमिटेशंस दैट इट डिलेड इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिमांड समझे. इवैल्यूएट अगर बोल रहा है तो हमें बोल रहा है कि इवैल्यूएट हम जब करते हैं किसी का, तो हम देखते हैं ना कि क्या खूबी रही है, क्या खराबी रही है. सो सिमिलरली यू हैव टू डू दैट. You have to understand the demand of the question and then work on addressing the demand. So this is very, very, very important, and this can fetch you easily 5 to 10 marks more per paper अगर आप demand को सही से address करें question के. Lastly, presentation का ही part था ये, I missed it earlier, is subheadings. तो सब हेडिंग्स भी मैंने यहां पे बोला है. सपोज आप तो क्वेश्चन में आप 10 मार्कर्स 15 मार्कर्स ये सब क्वेश्चन में आप पार्ट्स खोलते हैं, तो जब आप पार्ट्स कोई भी पार्ट लिख रहे हैं तो यहां पे हेडिंग आपने डाल दिया, बट उसके नीचे आपको सब हेडिंग भी डालना पड़ेगा, बिकॉज अगेन इट एनरिचेस योर आंसर, इट मेक्स इट मोर प्रेजेंटेबल. काफी बार ऐसा हो सकता है दैट द पर्सन हु इज इवैल्यूएटिंग मे नॉट रीड योर एंटायर कंटेंट, दे मे ओनली रीड योर सब हेडिंग्स, एंड इन दैट केस अगर आपने सब हेडिंग्स को अंडरलाइन किया है तो वो एविडेंट हो जाते हैं. सब हेडिंग्स अगर लिखा है और लिख के अंडरलाइन किया है तो वो एविडेंट हो जाता है कि ओके ठीक है, इनने 4 पॉइंट लिखे हैं, ये ठक 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 4 पॉइंट्स हैं, तो वो काफी जल्दी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए और इजी हो जाएगा, तो इस हिसाब से वो मार्क्स भी देंगे. सो दैट इज व्हाई सब हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो आई फील दैट दीज आर सम ऑफ द top of my mind really important aspects of answer writing and really common mistakes that students do while writing their answers. ठीक है, तो इसके साथ साथ I would again reiterate the fact that आप सिलेबस समझें, आप समझे कि GS 1, 2, 3 का क्या डिमांड्स है. फॉर एग्जाम्पल GS 3 का over the years, last few years we are seeing that GS 3 में जो एवरेज स्कोर्स है वो काफी कम हो रहे हैं, somewhere around 90 to 100 के बीच में रहते हैं, उससे ऊपर बहुत कम केसेस हम देखते हैं. So why is that happening? One understanding that I feel could be a reason is GS3 जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत टेक्निकल सिलेबस है, एंड इट रिक्वायर्स कि आप वो सिलेबस से ओरिएंटेड जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप टेक्निकल वर्ड्स, की वर्ड्स, ये सब चीज आप यूज करें, और ये चीज यूज करें, डायग्राम्स बनाए. जैसे फ्यूल सेल का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें आपको फ्यूल सेल का अगर आप डायग्राम बना पाए, सो दैट मे फेच यू मोर मार्क्स. तो you need to have a more scientific and a more not just scientific but a more technical understanding or technical backing
a technical way of answering GS3 questions, and that in my opinion might fetch you more marks. And that is why it is important कि हर एक पेपर GS1, GS2, GS1 में diagrams are very important, GS2, GS3 में again technical keywords are very important, ये सब आप यूज करें तो keywords become very important. GS3 again, GS4 में keywords are very 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 important because GS4 में things like आप deontology, integrity, consequentialism, कार्डिनल वर्च्यूज, ये सब आप कीवर्ड से अगर भरेंगे तो आपका आंसर और ज्यादा एनरिच होगा और ज्यादा यूनिक लगेगा. उसके साथ साथ GS4 में और क्या डिमांड है? GS4 में डिमांड है एग्जाम्पल्स की, भर भर के एग्जाम्पल्स. बिकॉज GS4 अगर आप कोई भी पेपर पढ़ेंगे, कोई भी आप टॉपर्स कॉपी पढ़ेंगे तो बिना एग्जाम्पल के GS4 साउंड्स और सीम्स, द आंसर सीम्स वेरी डल, बस फंडे लिखे हुए. अगर एग्जाम्पल्स उस पर स्प्रिंकल कर दें आप तो आंसर और ज्यादा एनरिच हो जाता है. इट बिकम्स फन, इट बिकम्स इंटरेस्टिंग टू रीड दोस आंसर्स, एंड दैट इज अ वेरी नेचुरल वे ऑफ फेचिंग मोर मार्क्स इन माय ओपिनियन. एंड दैट इज व्हाई GS4 में एग्जांपल्स आप लिखे, बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखे, डिफरेंट ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट ऑफिसर्स हु आर डूइंग रियली गुड इन दिस सर्विस, उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या ले सकते हैं. तो ऐसे मैंने एक लिस्ट बनाया था डिफरेंट ऑफिसर्स का, तो दैट वाज पार्ट ऑफ माय नोट्स एज वेल. सो समथिंग यू कैन डू एज वेल एंड इनकॉर्पोरेट दैट. Bring up those examples when you're writing questions for GS4. आप अपने जब केस स्टडीज लिख रहे हैं उसमें भी ये एग्जाम्पल्स ला सकते हैं और उससे अपने केस स्टडी का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं, या आप कोई कोटेशन इसको भी अपने केस स्टडी में यूज कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी हेल्पफुल, एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ ईच एंड एवरी पेपर टाइप. GS4 का क्या डिमांड है. ऑप्शनल का मैं बता रखा हूं, जैसे ऑप्शंस लाइक PSIR, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, इनका आंसर राइटिंग पैटर्न इज वेरी डिफरेंट. इसमें पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं एज फार एज आई नो, उसमें पैराग्राफ वे में लिखते हैं, एटलीस्ट फॉर PSIR, एंड दैट इज वाई उसके लिए प्रेजेंटेशन इज वेरी डिफरेंट. उसमें थोड़ा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव चाहिए. सो इट फॉर ईच ऑफ योर ऑप्शनल्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट इज द पैटर्न, आंसर राइटिंग पैटर्न दैट यू मस्ट फॉलो. इसके साथ साथ I would also mention essay. So essay के लिए again I would suggest that essay is a very critical thing. Essay में भी अगर आप marks ज़्यादा fetch कर पाओ अगर more than average, तो it may boost your rank a lot, and that is why you need to spend considerable time understanding your essay. और essay को enrich कैसे कर सकते हैं? What I feel one thing that may work out is getting your essay, your mocks essay evaluated, but not just evaluated by multiple people. कि कोई एक ऐसे आपने अपने जो कोचिंग या मॉक टेस्ट सीरीज जहां से लिया है वहां पे आपने इवैल्यूएशन करवाया, फिर कोई एक ऐसे आपने कोई पेयर से, किसी दोस्त से इवैल्यूएशन करवाया. आप अपने ऐसे चाहे तो कोई एक नॉन UPSC कैंडिडेट, कोई फ्रेंड है, उससे भी इवैल्यूएट करवा सकते हैं टू गेट देयर इनसाइट्स एज वेल. सो ये मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल बैकग्राउंड के लोगों से, मल्टीपल सोर्सेज से जब आप अपने ऐसे इवैल्यूएट करवाएंगे तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि ऐसे आपका कैसे इंप्रूव हो रहा है और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप ऐसे में कोहेरेंस बैठा सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो व्हाट समथिंग दैट यू हैव टू लर्न, एंड फॉर दैट ऐसे के लिए मैं सजेस्ट करूंगा गेटिंग इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. एंड लास्टली आई वुड स्पेयर 1 or 2 lines for the compulsory language papers, Hindi, English, yeah, any language. So for that there are students who come to me and say that they're very worried about those papers, and I say that यार those papers are very easy और वो बस पासिंग वाले पेपर्स है, तो इसलिए I feel we can spend very limited time. आप अपने 3 महीने में हर दिन 1 घंटा या आधा घंटा अगर स्पेंड कर रहे हैं, या ऑन द डे जिस दिन आपका एग्जाम है सैटरडे को, उस दिन एग्जाम के इस साल आई गेस 29th of August है, तो 28th of August spend the entire day going through English and Hindi, PYQs and all that, that will help. PYQs से याद आया, एक पॉइंट मैं यहाँ मिस कर चुका हूं आंसर राइटिंग में. पॉइंट नंबर 7 is PYQs. प्लीज गो थ्रू द PYQs, बिकॉज PYQs से आपको आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कैसे अपने आंसर्स को और ज्यादा एनरिच कर सकते हैं बाय गेटिंग एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड और दैट हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली. ठीक है, जैसे नेक्सलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, और नेक्सलिज्म से आपको पता चल जाएगा PYQ से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और उससे ही आप अपने आंसर्स को और ज्यादा सुधार सकते हैं. सो आई फील दैट आप जब मॉक मेंस टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें कोशिश करिए कि उसके साथ साथ आप PYQs का भी एक पेपर दे दें, या PYQs के भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत रैंडमली उठा ले, किसी फ्रेंड को बोले रैंडमली उठा के मेरे को एक मेडली बना के दो, एंड उन क्वेश्चंस को आप लगाइए, जिससे आपको PYQs का भी आइडिया लगेगा कि व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट UPSC आस्क्स, एंड ऑल्सो
उन क्वेश्चंस के लिए कैसे मुझे प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन पे काम करना है, कैसे मुझे उनका डिमांड समझना है, एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस का डिमांड मैं कैसे एनालाइज कर सकता हूं, ये आपको बेस्ट आपका टीचर होगा PYQs. So I feel that these are some of the mistakes that people do, and इसके अलावा और भी mistakes हो सकते हैं, but I feel that you will able to learn and get an idea of how to improve yourself, how to work on those mistakes only when you get in the game. So right now I feel that irrespective आप 2025 मेंस दे रहे हो या 2025 मेंस नहीं दे रहे हो, 2026 मेंस देंगे या प्रीलिम्स देंगे, आई फील राइट नाउ, एंड आई एम गिविंग दिस रिकॉर्डिंग दिस सेशन इन द मंथ ऑफ जून, आई फील राइट नाउ इज द टाइम कि आप अपना 100% दें मेंस प्रिपरेशन के लिए, इररिस्पेक्टिव आपका प्रीलिम्स निकल रहा है नहीं निकल रहा है, कब देना है नहीं देना है, अभी राइट टाइम है आपका मेंस प्रेप आप स्टार्ट करें, मेंस प्रेप करें, आंसर राइटिंग करें, जिससे आपका अगर आप मेंस 2025 दे रहे हैं तो वो तो बेटर होगा ही, उसके साथ साथ मेन 2026 2027 भी आपका इंप्रूव हो जाएगा अगर आप ये वाले गाइडलाइंस फॉलो करें, बिकॉज राइट नाउ इज द टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर मेंस एंड कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड, कीप इन माइंड द प्रीवियस मिस्टेक्स वाली बात जो मैंने आपको निमोनिक डिवाइस दी थी, इसको भी दिमाग में रखिए और इससे अपना मेंस इंप्रूव करिए, एंड आई एम श्योर दैट दीज मे एंड दीज विल हेल्प यू फेच some more marks. So apart from that आपको हार्ड वर्क, डेडिकेशन वगैरह ये सब तो बताऊंगा नहीं, बिकॉज दैट इज द कांस्टेंट, ये तो आपको करना ही पड़ेगा यूपीएससी के लिए. So I feel that's it. This have been my bit, this have been my learnings, and wish you guys all the best, and really good luck with your preparation and really good luck with your exams. Thank you so much. Jai Hind.